Good morning students, welcome back to Simplified Maths. दोस्तों, today in this particular lecture we are continuing chapter 9 differential equations part 4. Okay, in the last lecture if you remember we have started exercise 9.4 and we have completed the discussion up to sum number 1 to 10, and this whole exercise is based on only one method, and that is variable separable method. So now today I am going to do sum number 11 to 14 in this particular lecture. All of you just look in the textbook. Okay. In fact, the 11 to 14 sum is to find out the particular solution. Okay दोस्तों, particular solution find करना है. But in fact, to find out the particular solution is not a new thing. First of all, we have to find a general solution. Look at the sum. X cube plus x square plus x plus 1 into dy by dx is equal to 2x square plus x. And see, for the particular solution, they will be giving when x equal to 0, it will be given when x equal to 0, then y is equal to 1. 1. This is given. So this data will be used when once you find out the general solution. एक बार आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना होगा दोस्तों. आफ्टर फाइंडिंग द जनरल सॉल्यूशन, then you can find out the particular solution by using the value of x and y, and to get the we'll get the value of c, आर्बिटरी कांस्टेंट. तो पहले तो जनरल सॉल्यूशन ही करना है जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था. ओके, सो क्या करेंगे यहाँ से, वेरिएबल सेपरेबल मेथड. सो dy इज अलोन, देर इज नो टर्म्स कंटेनिंग y. सो dy इज इक्वल टू 2x square plus x upon this thing will be going there, but see that I save one step in writing. Then from the first two terms, what is common? X square common, so x plus 1. And from the last two terms, what is common? 1 common, so x plus 1. Okay, ये मैंने साथ साथ में कर दिया. Not only variable separable method I am using, but also factorizing. Okay, right. So is equal to, it will be 2x square plus x upon x plus 1 into x square plus 1. ओके, ये हो गया हमारा वेरिएबल सेपरेबल. ओके, सेपरेट हो गया ना, dx dy सेपरेट हो गया. अब क्या करेंगे, दोनों साइड हम इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड. सो इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू integration of 2x square plus x upon x plus 1 into x square plus 1, okay, dx. Now once you integrate, only those students will be able to do this, solve this problem, who knows integration perfectly. Because once you apply the integration symbol, then any method will be there. आपने इंटीग्रेशन में जितना भी पढ़ा है ना, उसमें से कुछ भी आ सकता है. एनीथिंग विल बी देयर. ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर और रिकॉल एनी मेथड. ओके, कुछ भी आ सकता है. नाउ सी व्हाट इज हियर. आई कैन सी दैट इट्स अ मेथड ऑफ पार्शियल, है कि नहीं, फ्रैक्शन. मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन है कि नहीं. सी, एंड व्हाट मोर इज देयर. If you see the degree or power of the numerator is 2 and the power of the denominator total power is 3. So it is proper or improper rational function, वो भी याद करना पड़ेगा. So this is proper because denominator's power or degree is more than the numerator. So ये proper है. So we will apply the partial fraction method. Okay, so partial fraction method में क्या करेंगे now. Okay, let, what was the method, you know, 2x square plus x upon x plus 1 into x square plus 1
इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी, याद है ना, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन. ठीक है, राइट. सो दिस सम आई हैव टू डू द फुल बिकॉज आई एम नॉट गिविंग यू फॉर होमवर्क बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन. तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन व्हेन वी विल गेट, कब मिलेगा, जनरल फाइंड करने के बाद ही पर्टिकुलर मिलेगा. तो हमको पूरा फाइंड करना ही पड़ेगा. ठीक है. सो नाउ once you do this then you take LCM. LCM will get cancelled from both the side. ठीक है. तो 2x square plus x is equal to a into x square plus 1 plus bx plus c into x plus 1. ठीक है, राइट. ये हो गया, राइट. Now you have to find out the value of a, b and c. For that there are two methods. One method is that what textbook people are using. क्या करेंगे, comparing the coefficient of the equal power from both the side. Comparing the coefficient of the equal power from both the side, and then they will form an equations in terms of a, b and c. और एक बार इक्वेशंस बन गए ए बी सी वाले, देन सॉल्व इट. सो आई डोंट यूज़ दैट मेथड. मैं क्या करता हूँ, मैं एलिमिनेशन मेथड करता हूँ. सो टेक वैल्यू ऑफ एक्स इन सच ए वे दैट यू गेट द ए बी सी में से कोई एलिमिनेट हो जाए. सपोज आई टेक एक्स इक्वल टू -1. याद करो, एक्स इक्वल टू -1, देन दिस ब्रैकेट विल बी 0. सो द होल टर्म विल बिकम 0. सो बी और सी दोनों एक साथ एलिमिनेट हो गए. सो x इक्वल टू -1 लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, इट विल बी 2 - 1. ओके. एंड यहाँ पे भी -1 रखेंगे तो इट विल बी 2a. और ये पूरा bx प्लस सी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज इनटू 0. सो आई एम डायरेक्टली राइटिंग 0. नाउ दिस इज 2 - 1 इज 1. सो a क्या मिला हमको, a इज इक्वल टू हाफ मिल गया. ठीक है. अब जैसे b और c एलिमिनेट हो गया, अब आप चेक करके देखो, अब उसमें से एक साथ दो अननोन एलिमिनेट नहीं होने वाले बिकॉज ऑफ दिस bx प्लस सी एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी ऐसा है टर्म, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता. तो मैंने बोला था कि इन दैट केस यू कैन सिलेक्ट एनी वैल्यू ऑफ k. You can select any value of x. सॉरी, ओके, कुछ भी ले सकते हो. तो -1 आ गया ना, अभी 0 ले लो. हाँ, ऑलवेज गो फॉर द स्मॉलर वन. तो 0, लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा. यहाँ पे 0 रखेंगे तो a, ये bx वो 0 हो जाएगा तो खाली c बचेगा. 0 + 1 इज ऑल्सो +1. सो ओनली a प्लस सी. ठीक है. अब इसमें a की वैल्यू तो प्लस हाफ ऑलरेडी है, मतलब कि c इज इक्वल टू -हाफ मिल गया कि नहीं. ओके. सो आई फील दिस मेथड इज इजी देन दैट टेक्स्ट बुक मेथड कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट फ्रॉम बोथ द साइड. अब क्या बचा, b. तो b फाइंड करने के लिए टेक वन मोर वैल्यू ऑफ x एज यू विश, कुछ भी ले लो. तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, स्मॉलर वाली वैल्यू लेता हूँ. तो आई टेक x इक्वल टू 1. ठीक है, x इक्वल टू 1. -1 0 आ गया तो +1 ले लो. तो ये साइड आ जाएगा 3, राइट. फिर ये हो जाएगा 2a. फिर यहाँ पर 1 रखेंगे तो b प्लस सी और इनटू ये 1 + 1 मतलब 2. तो एक्चुअली ये क्या हुआ, 2a + 2b + 2c हुआ. ठीक है. तो 2a विल बी +1. जस्ट सी व्हाट आई एम, 2a is 1, 2c will be -1. तो 2a + 2c कट हो गया, खाली 2b बचेगा. सो 2b is equal to 3. होप यू अंडरस्टैंड दिस. 2b is equal to 3 only. So what is b? b is equal to 3/2. ठीक है. Therefore b is equal to 3/2 मिला हमको. ठीक है ना, राइट. तो ये ए बी सी की वैल्यू जो मिली
वो हमको यहाँ पर रिप्लेस करनी है और देन यू हैव टू इंटीग्रेट, ये इंटीग्रेशन करना है. सो दैट आई एम राइटिंग ऑन द नेक्स्ट पेज. सो फाइनली व्हाट यू विल गेट, इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू, ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ dy is equal to integration 1 by 2 upon x plus 1 plus 3 by 2x minus 1 by 2, okay, upon x square plus 1 dx. ठीक है, राइट, गॉट दिस. तो ये b वैल्यू 3 by 2, c इज माइनस हाफ, a इज प्लस हाफ, वो सब हमने रख दिया, इंटीग्रेशन कर दिया. नाउ यू अप्लाई इंटीग्रेशन टू बोथ ऑफ दिस सेपरेटली. सो क्या हो जाएगा, 1 by 2 आउट, 1 अपॉन x प्लस 1, फिर यहाँ पे 3 by 2 आउट, इट विल बी x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 एंड dx, एक्चुअली यहाँ पे भी dx एंड माइनस हाफ, और यहाँ पे भी dx लिखना होगा, तो dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, राइट. अब क्या होगा, देखो dy इंटीग्रेशन इज ऑलरेडी देयर, इसका भी है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज फॉर्मूला देयर, लॉग मॉड एक्स प्लस 1. दिस टर्म फॉर्मूला इज ऑल्सो देयर, tan इनवर्स एक्स. ओनली दिस इज नॉट देयर. तो अभी इसको भी मैं अरेंज कर देता हूँ. तो सी, इसमें डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव क्या होगा, 2x. क्या होगा, 2x होगा ना. तो 2 इज मिसिंग. सो क्या करेंगे हम, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो. सो इज इक्वल टू 1 by 2, और ऐसे ही लिखना है तो ऐसे ही लिख देता हूँ, प्लस 3 by 4 डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर आ गया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और ये भी एज इट इज. ओनली इन द मिडल टर्म डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2 जस्ट टू गेट द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर. ठीक है, और अब ये हमारे पास सीधा थियरम, वो फॉर्मूला है, कौन सा, एफ डैश एक्स न्यूमरेटर अपॉन एफ एक्स डिनोमिनेटर. एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स फॉर्मूला आ गया, राइट. एज आई टोल्ड यू, एनी फॉर्मूला, एनी थियरम, एनी मेथड विल कम. जिसको इंटीग्रेशन पक्का आता है उसी का ये काम है, बाकी फिर ये चैप्टर टफ लगेगा. सो आंसर विल बी व्हाट, यू नो, आंसर विल बी log mod डिनोमिनेटर और log mod एफ एक्स, राइट. सो सबका आंसर आ गया. अभी ये dy का क्या हो जाएगा, y. सो y इज इक्वल टू, इसका करेंगे 1 by 2 log mod x प्लस 1 प्लस यहाँ पर 3 by 4 log mod x स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस 1 by 2 tan इनवर्स x एंड प्लस c. ठीक है, राइट. यहाँ पे मैंने बोला हुआ है कि प्लस c के बदले कुछ भी आ सकता है, देखते हैं क्या होता है आगे, वो फिर से चेंज करा. अभी से नहीं सोच सकता, एक भी आगे जाएंगे ना, 1-2 स्टेप तो पता चलेगा कि c चाहिए कि कुछ और चाहिए. ठीक है, अभी वैसे तो दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन हो गया, बट इफ यू सी द टेक्स्ट बुक, नो दोस्तों, सो पॉसिबल दैट they have gone little further in this, okay. And what they have done, you know, they might have taken 4 as the LCM. So if you take the 4 LCM, what will be the 4 LCM? Will be going this side also. So 4y is equal to 4 LCM, so it will be 2 log x plus 1, okay, plus 3 log mod x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 by 2, सॉरी इसमें भी 4 LCM आ गया, तो 2 tan इनवर्स x हो जाएगा एंड प्लस 4c.
When you take the LCM, you have to apply LCM to the constant also. Okay, right? Dear student, there is some procession going on around besides the school, so you may hear some sound in the recording, but I have no option. I have to continue. Okay, now 4 LCM will be applied to the constant also. So that is why I put it C dash here, and this will be 4 C dash. और 4 C dash को हम C बना देंगे ऐसे. होप यू अंडरस्टैंड दिस. ओके, सो मैं व्हाट आई हैव टेकन 4 LCM. अभी और एक स्टेप इन लोगों ने किया होगा. ओके, 4y इज इक्वल टू 2 will go to the power, so log of x plus 1 the whole square. Now no modulus because square. Now this x square plus 1 is already a positive quantity, so यहाँ पे भी modulus require नहीं है. और 3 will go in the power and plus will become multiplication according to the property of log. तो into x square plus 1 the whole cube. ये दोनों का मैंने एक साथ सिंप्लीफाई कर दिया. कोएफिशिएंट गोज टू द पावर, कोएफिशिएंट गोज टू द पावर, एंड एडिशन बिकम मल्टीप्लिकेशन. ओके, एंड देन माइनस 2 tan inverse x. नाउ प्लस c. इंस्टेड ऑफ 4c डैश आई राइट प्लस c. ओके, 4c डैश को हमने c लिख दिया. फाइनली आंसर में c आना चाहिए, दैट्स ऑल. ओके, so now this is a general solution. ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया. अभी हमको क्या करना है जनरल सॉल्यूशन के बाद? नाउ आई हैव टू गो फॉर द पर्टिकुलर सॉल्यूशन. नाउ x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 1. दिस इज गिवन है ना, ये हमको गिवन है डेटा. देखो तो यहाँ पर y इक्वल टू 1 रखो, x इक्वल टू 0 रखो, तो क्या आता है देखो. दिस साइड इज विल बी 4 ओनली. यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा पता है? इट विल बी सिंपली लॉग ऑफ 1, बिकॉज स्क्वायर स्क्वायर कोई मतलब नहीं है, बिकॉज x इक्वल टू 0, x स्क्वायर ऑल्सो 0, 1 स्क्वायर 1 क्यूब एवरीथिंग विल बी 1 ओनली. सो इट विल बी लॉग ऑफ 1, देन माइनस 2 tan इनवर्स 0 एंड प्लस सी, प्लस सी. ठीक है, राइट. सो यहाँ से फाइनली आंसर क्या मिला हमको? tan इनवर्स 0 इज ऑल्सो 0, log of 1 is also 0, that we must know these values. So c is equal to 4 मिला. क्या मिला आपको? c is equal to 4 मिला. ठीक है, और ये c is equal to 4 यहाँ पर आप रिप्लेस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया फाइनल. ओके, सो दस पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सो 4y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 1 द होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 द होल क्यूब. ओके, देन माइनस 2 tan इनवर्स x माइनस एंड प्लस 4. ओके, दिस इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन. ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया. ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग दोस्तों. अब देखो मेरे आंसर में और पीछे आंसर में हो सकता है फर्क हो, राइट. द रीज़न इज मे बी उन लोगों ने क्या किया होगा, ये जो 4c डैश है ना, सपोज मैंने 4c डैश को 4c डैश ही रखा तो आपको c डैश इक्वल टू 1 मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे जो c है ना, c मैंने किसके बदले रखा हुआ है? c इज केप्ट इंस्टेड ऑफ 4c डैश. सो यहाँ पर क्या आएगा? 4c डैश इक्वल टू 4, सो c डैश इक्वल टू 1. सो होप यू अंडरस्टैंड दिस. टेक्स्ट बुक में मुझे याद है तब तक आंसर में +1 दिया हुआ है, तो आपको लगे कि सर आपका गलत है. नहीं, मेरा रॉन्ग नहीं है. ओके, ये भी राइट ही है. और यहाँ पे अगर मुझे +1 लाना हो तो मैं ये पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दूंगा. ठीक है, तो मेरे ख्याल से पीछे आंसर भी शायद ऐसे दिया होगा, 4 से डिवाइड कर दोगे, राइट. तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा?
उन लोगों ने क्या किया होगा वो मैं बता देता हूँ। जो मैं एलसीएम लिया ना यहाँ पे, ये जो एलसीएम, वो एलसीएम उन लोगों ने यही का यहीं रखा होगा, वो इस तरफ नहीं ले लिया होगा, 4y नहीं किया होगा। सो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, उसकी वजह से हमारा जो फाइनल फॉर्मेशन होता है ना वो थोड़ा डिफर हो जाता है। सो डोंट वरी एट ऑल, ऐसा होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, ऐसा बहुत होता है। ओके, you will get marks for this also, you will get marks for that also, that means textbook also, don't worry at all. Okay, so ऐसे you just try to finish in the homework all the remaining sums 12, 13, 14. Okay, in the homework you just do the sum number कौन कौन से 12, 13 और 14 सम आप, एक कुछ नहीं है, पहले जनरल इक्वेशन करो और बाद में वो x और y की वैल्यू रख के पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड कर लो, दैट्स ऑल। ठीक है, राइट। सो नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डूइंग दिस प्रॉब्लम सम्स गिवन। ओके, ये जो प्रॉब्लम सम्स दिए हुए हैं ना वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।